We are learning the first lesson of class 10th English textbook, the book that saved the earth. And we saw how Martians planned to invade the earth, and their space crew reached the earth, and they entered in a library, and they found some books there, but they were not able to recognize what really it was. And with the help of their supreme commander, the leader, the great ruler of the Mars, the great and mighty think tank, they tried to find out what it was, and they thought it was a sandwich because the earthlings used to eat a lot. And the noodle, the apprentice, who is the helper of the great think tank, suggested that it was not a sandwich for eating, but the people of Earth or the Earthlings used it for communication. Then think tank agreed with him and asked the space crew to listen these communication sandwiches because these sandwiches are made for communication. So he asked them to listen these sandwiches, and we are learning today in this video द रिमेनिंग पार्ट तक हमने इतना देखा था. आज इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे पेज 6. Omega, it shall be done, sir. Okay, think tank asked them to listen this book or this sandwiches, and as the captain of the crew, Omega said, "It shall be done, sir." I say, किया जाएगा. They each take 2 books from the case and hold them to their ears, listening intently. They each take 2 books. प्रत्येक 2 बुक ले लिया है. From the case में से यानी शेल्फ में से 2 बुक लेकर hold them to their ears. 2 बुक ले लिया, 2 बुक दोनों खानों में वैसे लगाकर listening intently, बहुत गौर से सुनते हैं. आयटा whispering to Omega. आयटा ओमेगा से कहते हैं, do you hear anything? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहे हैं? आयटा whispering back. वापस सुनाते हुए कहते हैं, nothing. Do you hear anything? Oh, हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं. क्या वो तुम्हें कुछ सुनाई देता है? ओ लाउडली, नॉट ए थिंग. वो कहता है नॉट ए थिंग, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे. ओमेगा एंड आयटा जंप इन फ्राइट. जो ओ का जवाब सुनकर एकदम उनका जो सीनियर्स हैं, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, दोनों फ्राइट में एकदम जंप किया है यानी कूदा. ओमेगा एंड आयटा टुगेदर they listen intently again. ये कहते अभी ऐसे बोलो मत, फिर वापस बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. Think time. Well, report to me. What do you hear? तुम रिपोर्ट करो, बताओ तुम क्या सुना है. Omega, nothing sir. Perhaps we are not on the correct frequency. Omega कहते हैं हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है हमारा फ्रीक्वेंसी परफेक्ट नहीं है. आयटा, nothing sir. Perhaps they only have sharper ears than we do. We hear nothing. हम कुछ नहीं सुनते हैं. Because
we are not able to hear these communication sandwiches, and their frequencies are not adjusting with our frequencies. हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ इसका फ्रीक्वेंसी शायद adjust नहीं हो रहा है, इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा है. Perhaps शायद, that is possible, ये शायद ऐसा हो सकता है, यात्री have sharper ears than we do, हमारे से ज़्यादा यात्री का जो कान है शार्प है, हो सकता है बहुत तेज है. Oh, I don't hear a thing. Maybe these sandwiches don't make sound. वो कहता है I don't hear anything. मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है. Maybe, perhaps, शायद these sandwiches don't make sound. शायद ये sandwiches कुछ आवाज नहीं करते होंगे. Think tank. What? Does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? ये सुनकर think tank कहता है what? क्या तुम्हारे मतलब कहने का मतलब क्या है? ग्रेट माइटी थिंक टैंक क्या कुछ गलती कर सकता है? बिकॉज यू वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन कोई है, क्या उससे कोई गलती हो सकता है? डज समबडी सजेस्ट, किसी का कहने का मतलब ये है क्या माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, माइटी थिंक टैंक ने कोई गलती की है? मैं कहूँ oh no sir we'll keep listening. नहीं सर आपने कोई गलती की नहीं, हम वापस सुन रहे हैं, हम वापस सुनेंगे. Noodle, please excuse me your brilliance, but a cloudy piece of information is twirling around in my head. Noodle, apprentice Noodle कहते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस. सो हियर द ग्रेट एंड द माइटी थिंक टैंक इज वेरी ब्राइट, ब्रिलियंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. उसके सामने किसी का भी ज्ञान कुछ नहीं है. फिर भी नूडल कहते हैं योर ब्रिलियंस, तुम बहुत ज्ञानी तो हैं. Please excuse me, माफ करना, but a cloudy piece of information twirling around in my head. आप तो बहुत ज्ञानी, फिर भी मेरा दिमाग में ऐसे कुछ cloudy means vague, not clear, इतना स्पष्ट तो नहीं है. कुछ आइडिया, इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है twirling around in my head, मेरा दिमाग में twirl कर रहा है, स्पिन कर रहा है. twirl का मतलब स्पिन यानी घूम रहा है, यानी मेरा दिमाग में कुछ आइडिया तो घूम रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जानकारियां घूम रहे हैं. थिंक टैंक वेल चल इट आउट, अगर तुम्हारे दिमाग में घूमते हैं तो उसको बाहर निकालो. नूडल आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू. तुम्हारे योर आइडिया इज वे क्लाउडी, तुम्हारे आइडिया है, इंफॉर्मेशन दैट इज क्लाउडी है, क्लियर नहीं है, तो ये तो बाहर निकालो. यानी तुम यू से इट, आप तुम बोलो I clarify it for you. मैं तुम्हारे लिए इसको clarify करके दूंगा, interpret करके दूंगा. Noodle, I seem to recall that the earthling did not listen to the sandwiches. They opened them and watched them. मुझे ऐसे याद हो रहा है. I seem to recall याद करना. I seem to recall, मुझे ऐसे याद हो रहा है that the earthling did not listen to the sandwiches. एथलिंग ये सैंडविचेस को कभी सुनते नहीं थे, बट दे ओपन देम एंड वॉच देम. ये सैंडविचेस को खोलकर वो वॉच करते, उसको देखते थे. थिंक टाइम. यस दैट इज क्वाइट करेक्ट. हाँ बिल्कुल सही है, तुमने सही बोला है. आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट कर लेता हूँ. कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन. ओमेगा, दैट सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, यानी ये कान से सुनने के लिए, कोई कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं है सैंडविचेस. दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वो आई कम्युनिकेशन के लिए, आंखों से कम्युनिकेट करने के लिए. नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर द ईयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट. नाउ इसलिए कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर द ईयर, उधर एक बड़ा सा ये कलरफुल सैंडविच है, तुम ये निकालो. It appears to be important.
लगता है बहुत महत्वपूर्ण है सैंडविच हैं। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व देयर। तुम उसमें क्या देखते हैं वो बताओ। ओमेगा पिक अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस। मदर गूस नाम का एक सैंडविच दैट इज बुक कैप्चर ओमेगा ने पिकअप कर दिया है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। वो किताब लेकर ऐसे पकड़ लिया है सो दैट ऑडियंस कैन सी। ऑडियंस देख सकते हैं। यू रिमेंबर इट्स अ ड्रामा, एक ड्रामा है। ये सारे चीजें स्टेज पर हो रहे हैं। सो स्टेज पर हो रहे चीज ऑडियंस को देखना है। सो ऑडियंस देख सकते हैं। इसी तरह ये किताब लेकर मदर्स गूस किताब लेकर ऐसे पकड़ लिया गया सो दैट ऑडियंस कैन रीड द हेडिंग एंड सी द बुक क्लियरली। बुक को स्पष्ट देख सकते हैं। इसी तरह पकड़ लिया। I had a look over her left shoulder. अभी कैप्टन इज होल्डिंग द बुक। कैप्टन किताब पकड़ रखा है। कैप्टन के पीछे लेफ्टिनेंट आयोटा है। लेफ्टिनेंट आयोटा लेफ्ट शोल्डर से कैप्टन का पीछे खड़े होकर उसका लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से वो देख रहे एंड पेज ओवर द राइट शोल्डर। कैप्टन का राइट शोल्डर के ऊपर से यानी पीछे से पीछे खड़े होकर राइट शोल्डर के ऊपर से वो भी इसी चीज किताब को देख रहे हैं यानी सैंडविच को देखते हैं। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग। ऐसे दिखता है इट टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग। इसके अंदर क्या है अर्थलिंग का कुछ पिक्चर्स दिखता है। एटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ गॉड। There seems to be some sort of code. Sort means a kind, some kind of code. ऐसा लगता है इसके अंदर ऐसा कुछ कोड लिख रखा है। Think time, sharply interested code. ये कोड शब्द सुनते ही think time को काफी इंटरेस्ट हो गया है। So उसने कहा code, what is it code? I told you this was important. Describe the code. मैंने कहा था ना that take that book because it seems to be important। ये बहुत importance दिखता है। You see there is code in it। उसके अंदर कोड से लिखा है। इसका मतलब मैंने कहा था सही था ना। So that is very important book sandwich। Describe the code। ये code क्या है describe करो। Oh it's little lines and squiggles and dots। वो कहते हैं ये कोड से है little lines छोटे छोटे लाइन्स हैं एंड स्क्विगल्स हैं टेढ़े मेढ़े लाइन्स हैं एंड डॉट्स। इसमें कुछ लाइन्स है टेढ़े मेढ़े लाइन्स है और डॉट्स हैं। thousands of them alongside the picture। ये पिक्चर के साथ ये कोड्स इन थाउजेंड हजारों हजारों में हैं। we must break the code। okay think time। perhaps the earthling are not as primitive as we have thought। perhaps शायद these earthling are not primitive as we have thought। जैसे हमने सोचा उतना primitive नहीं है ये earthling। primitive means not developed। perhaps the earthling are not as primitive as we have thought। we must break the code। हम सोचे इतना primitive नहीं है इतना they are not underdeveloped not developed ऐसा नहीं है। they are developed people। ये developed people है। हमने सोचे इतना primitive नहीं है। no forgive me your cleverness but did not the chemical department give our space people vitamins to increase intelligence। Forgive me your cleverness। ये बुद्धिमान माफ करना but did not the chemical department give our space people vitamin to increase their intelligence। क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट इनको अपना इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए कुछ विटामिन नहीं दिया था। थिंक टाइम स्टॉप। A thought of magnificent brilliance has come to me। Stop।
A thought of magnificent brilliance. एक magnificent brilliance है. Magnificent means भव्य और beautiful. ये सुंदर एक brilliance है. इधर brilliant का मतलब सोच समझ लेना. एक thought है, एक brilliance मेरे दिमाग में आया, has come to me. Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Space people, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट है, given आपको दे रखा है, has given you vitamins to increase your intelligence. तुम्हारे इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए विटामिन्स दे रखा है. टेक them immediately. उन विटामिन्स को टेक them immediately, तुरंत ले लो. एंड देन फर्स्ट सैंडविच, ये विटामिन्स लेकर फिर सैंडविच को देखो. द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू. आपके सामने ही कोड का मीनिंग है, धीरे धीरे खुल जाएगा. ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ये किया जाएगा. रिमूव विटामिन्स निकाल रहे हैं. क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट. अपना बेल्ट पर बांध कर रखा, बॉक्स के अंदर से विटामिन्स ले लिया. प्रेजेंट विटामिन्स दिखा रहे हैं. दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम. वो उनके सामने विटामिन्स निकालकर स्टिफली, सख्त रूप से इसे पकड़ लिया. स्वॉलो विटामिन्स, वो विटामिन्स को स्वॉलो करो, निकाल दो. They pop the vitamins into their mouth. जैसे आप लोग चना खाता है, इसी तरह जो विटामिन से अपना मुंह के अंदर पॉप कर दिया है, डाल दिया है. And gulp simultaneously. Gulp निकाल दिया कैसे? Simultaneously, एक साथ. Means this three people are here. तीन लोग हैं, तीनों मिलकर एक साथ pop into their mouth, अपने माउथ में डाला है. And the gulp together simultaneously. They opened their eyes wide. ये खाने के बाद अपने आंखें खोल दिया. They had shake, उसका सिर शेक कर दिया. And they put their hands to their forehead. उसका हाथ अपना forehead पर रख दिया. ठीक है, excellent. Now decipher that code. बहुत बढ़िया. Now decipher that code. अभी interpret that code. Decipher करो, interpret करो. ये कोड को अब तुम interpret करो. All means Captain Omega, Lieutenant Earth and Sergeant O. All three together, ये तीनों मिलकर. It shall be done, sir. ये किया जाएगा. They frown over the book, turning pages. They frown over the books. उसके ऊपर से ऐसा फ्रोन करते हुए देख लिया है, मतलब शक का नजरिए से क्या है देखने के लिए एक पेजेस को टर्न करके देख लिया है. Omega, brightly. And I had brightly, oh, bursting into laughter. You see, अभी इनको कुछ समझ में आ रहे हैं. ओमेगा देखकर आयोटा भी ओहो. एंड ये ओप को देखते हैं, bursting into laughter, बहुत हंसते हुए. Think time. What does it say? तो क्या कहते हैं ये सैंडविच के अंदर, कम्युनिकेशन सैंडविच हैं, वो क्या कहते हैं? Tell me this instant. ये तुरंत मुझे बताओ. Transcribe Omega. उसको तुम ट्रांसलेट करके बताओ. Omega, yes sir. She reads with great seriousness. Omega बहुत गौर से इसको रीड करती है. Mistress Mary quite contrary. How does your garden grow with the cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row? Okay. आप जानते हैं एक नर्सरी राइम्स का थे, उसके अंदर कई बार नॉन सेंसिकल पोएम्स होते हैं. उसका मीनिंग तो होता नहीं है, एक रिथम होगा और राइमिंग्स होगा. ऐसे एक पोएम है, वो इसके अंदर मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्री, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. Omega read this poem for or she deciphered
the poem for the great think tank. You see here, it says, how does Mary grow her garden? मेरी अपना गार्डन को कैसे तैयार करते हैं ये बताया है. क्वाइट कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स जस्ट ऑपोजिट. तो वैसे गार्डन तैयार करते हैं. गार्डन में आप जानते हैं पौधे लगाते हैं, फूल वाले हो सकता है, डेकोरेटिव हो सकता है, अलग अलग पौधे लगाते हैं. तो अलग अलग पर्पस में अलग अलग प्लांट्स लगाते हैं. तो उसका जस्ट ऑपोजिट है, उसका विपरीत, उसका जो गार्डन में कुछ खासियत है. हाउ डज योर गार्डन ग्रो? तुम्हारे गार्डन कैसे तैयार किया है? विद कोकिल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स. गार्डन के अंदर कोकिल शेल्स हैं, एक जैसा शेल्स हैं, यानी शंख देखा हुआ आपने, इसी तरह एक शेल वाले एक जानवर है. दैट इज एडिबल एज वेल, एडिबल भी. जैसे कोकिल शेल्स को भी उसके गार्डन में उगाते हैं. एंड सिल्वर बेल्स, बेल्स है दैट इज ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो बेल्स है वो भी गार्डन में उगते हैं. अब देखिए एक तरह जानवर भी है और जो मेटल है, ये दोनों क्या है, गार्डन में उगता है. नॉट ओनली दैट, मात्र ये नहीं, ये प्रिटी मेड ऑल इन ए रो, एक लाइन में क्या है, प्रिटी मेड, सुंदर मेड्स भी उगाया है. यू सी दिस गार्डन इज ऑफ cockle shells and silver bells and here pretty maids. गार्डन में आप देखो होगा फूल वाले प्लांट्स होगा, पर ये बिल्कुल अलग है. इट्स कॉन्ट्ररी, उसका जस्ट ऑपोजिट है. ओ हा, इमेजिन दैट, तुम ये कल्पना करो, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, सुंदर मेड्स हैं. उसको भी मेड्स में से आप नौकरान समझ लो. तो इसे काम करने वाला जो मेड्स हैं उसको भी कहाँ उगाया है, गार्डन के अंदर. सोचो, थिंक टाइम. अलार्म्ड, ये सुनकर थोड़ा अलार्म हो गया है, उसको कुछ चेतावनी. रोक, स्टॉप, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी. यह लेविटी का समय नहीं है. लेविटी मीन्स चपलता बोल सकते हैं, यानी लेविटी सिली मैटर के लिए समय नहीं है. डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? क्या तुम इसे डिस्कवरी का, खोज का महत्व नहीं समझते हैं? दे आर टेलिंग हाउ डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. देखो, यार टेलिंग, लोग हैं, मामूली लोग नहीं है. दे लर्नड हाउ टू कंबाइन माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, खेती और माइनिंग ये दोनों साथ साथ कैसे चलाना वो सीखा है. दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स फॉर रेयर मेटल्स. वो रेयर मेटल्स लाइक सिल्वर जैसे मेटल का खेती करते हैं. एंड कोकिल शेल्स को भी इसके साथ खेती करते हैं. दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू. वो क्या क्या उगा सकते हैं, हाई एक्सप्लोसिव्स, यानी एक्सप्लोर करने वाला, फटने वाला बम जैसे चीज को भी उगा सकते हैं. नूडल कॉन्डक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट. तो फिर नूडल से कहते हैं हमारी इन्वेशन फ्लीट को कॉन्डक्ट करो. बिकॉज यू सी द प्रॉप वन, यानी पहला जो प्रॉप करने के लिए, उसका खोज करने के लिए निकला टीम है, वो they only reached the earth and they found something serious in this place. इस जगह पर कुछ ऐसी सीरियस चीज देख लिया है. So great thing time got alarmed. वो काफी सतर्क हुआ है. इसलिए नूडल से कहता है अब इनके पीछे प्रॉप करने के लिए गया, जो उसके पीछे और भी जो टीम है गया है टू इन्वाइट द अर्थ. Because he planned to invade the earth before lunch. Lunch से पहले अर्थ को इन्वर्ट करके bring under his greater rulership, अपना रूलरशिप के अधीन लाने के लिए प्रोग्राम बना लिया था. पर अभी सचेत और सतर्क होकर कहते हैं अभी बाकी जो लोग इनके पीछे इन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं उनको संपर्क करो. नोडल, they are ready to go down and take over it, sir. अभी वो नूडल कहते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ के पास पहुंच गया है. They are ready to
लैंड ऑन द अर्थ, अर्थ पर लैंड होने वाला है, एंड टेक ओवर अर्थ, अर्थ के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयारी में है। थिंक टैंक, टेल देम टू हॉल्ट, इसलिए थिंक टैंक कहते हैं टेल देम टू हॉल्ट, उसको रोकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, उनसे कहो अर्थ के बारे में नई जानकारी हमारे पास पहुंच गया है, इसलिए एकदम इन्वर्ट मत करो। आयटा ट्रांसक्राइब, फिर कहते हैं आयटा, उसको तुम वापस ट्रांसक्राइब करो, ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करो इसका व्हाट यू सी इन द बुक।